Jai Shri Swaminarayan. Good morning all. SSGM School CBSE Mankwa runs by Shri Sajanand Gurukul Mankwa heartily welcomes you all to this online education. I am Jyoti Bhanushali and today we are learning about Standard 6 SS3 Histories, second chapter on the trail of the earliest people. Now students, here is a story in the beginning. It's a story of a boy named Tushar. Tushar was traveling in the train and looking from the window. He saw trees, lakes, rivers, mountains that passed away and just wondered and asked a question to his uncle that when this train started to use, so his uncle told him that we used trains about 150 years ago. And then we started to use buses. So he thought that when there was no transportation, there was no train, no bus, then how the people will travel from one place to another? Were they traveled or not? Or they just stay at a place where they born for a lifetime? Yes. So in short, he wanted to know about the early humans, or we call them hunter-gatherers. Yes students, so let's know about them, about the hunter-gatherers. We know about the people who lived in the subcontinent as early that we call them hunter-gatherers. Yes. Okay, so as I told in the last videos to you that what I will write on this board, you will have to write it in your notebook. So keep your notebook, your pen, pencil, eraser, sharpener, your textbook, everything with you. Okay? Okay, let's start. So note it down. The early humans that we call them, yes, very good, hunter-gatherers. Yes, here is the answer of your question, that why we call them hunter-gatherers. Yes, have you any idea that why we call them hunter-gatherers only? Yes, very good. हम उनको hunter-gatherers इसलिए बोलते हैं because कि early humans जो थे, as we know, they completely dependent on their surroundings, on the nature, in the surroundings what they were found. Yes, so hunter gatherers जो थे वो क्या करते थे, उनके आसपास जो भी एनिमल्स थे, ओके, तो उनको हंट करते और वही वो एज अ फूड लेते, और जो भी फ्रूट्स थे या फिर लीव्स एंड प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजेस, जो भी उनको मिलता उनको इकट्ठा करते. सो वी कॉल दैम hunter gatherers. Yes, we thought that it is so easy, right? Yes,
जस्ट इतना ही तो करना है ना कि जो भी एनिमल्स हैं उनको पकड़ लेना है और फिर उनको जो भी जैसे भी पका के उनको खाना है, जो भी फ्रूट्स जो मिलते हैं उनको इकट्ठा करना है, राइट? बट नो, इट इज़ नॉट सो ईजी। जितना हम सोच रहे हैं इतना ये चीज़ ईजी नहीं है, बिकॉज जैसे कि हमें पता है कि एनिमल्स जो होते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि हम इंसानों से, ह्यूमन से भी ज़्यादा तेज़ वो भागते हैं। तो हंट करने के लिए, टू हंट एनिमल्स, द वन or the human being have to be very alert, very sharp, very quick. Yes, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये सारे गुण हैं जो कि उन लोगों में होने चाहिए थे, कि एकदम अलर्ट होने चाहिए, एकदम शार्प, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने चाहिए वो लोग, और इसी वजह से वो लोग उनको पकड़ पाते थे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमें ये भी तो पता है जैसे कि जो हंटर गैदरर्स थे तो वो एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे मूव ऑन करते थे, राइट? सो व्हाई दे मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? सो स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट टेल मी दैट व्हाई द हंटर गैदरर्स have to move from one place to another place. Yes, yes, very good. In search of food. Then yes, to survive. Then yes, to hunt animals. Yes, so many different reasons for that, right? Yes, here are mainly 4 reasons for what hunter-gatherers have to move from one place to another. Okay, the first one is they move from one place to another in search of food. Just note it down. First one is yes, in search of food. Yes, as we know that they were hunters and gatherers, मतलब कि वो अपने आसपास के जो एनिमल्स थे उनका शिकार करते और उनके आसपास जो भी फ्रूट्स या फिर पौधे थे उनको वो क्या करते, यस, उनको इकट्ठा करते और खाते। तो अगर वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पे रहेंगे तो क्या होगा, उनके आसपास के जो भी एनिमल्स हैं और जो फ्रूट्स, प्लांट्स, ट्रीज़ जो भी है जो वो लोग खा सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो सारा जो स्टॉक है वो डे बाय डे ख़त्म होगा। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे ताकि उनको सही से उनको उनका जो फूड है वो मिल सके। द सेकेंड क्वेश्चन, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन।
Yes. So animals were moved from one place to another. So हम सबको पता है कि एनिमल्स जो हैं तो वो लिविंग थिंग्स हैं जो एक जगह पे वो स्टेबल नहीं हो सकते, मतलब कि वो हमेशा दे मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ऑब्वियसली जो हंटर्स हैं तो उनको एनिमल्स को पकड़ने के लिए, उनका शिकार करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा, राइट. The third one is fruits and plants. As we know that the fruits and plants, yes, जैसे कि जो fruits और plants हैं तो वो होते सब जगह पे हैं, लेकिन what was the difference? Some of them were poisonous and some of them, only some of them were edible. मतलब कि कुछ ही ऐसे होते हैं जिसको वो खा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जहरीले पेड़ पौधे होते हैं. ओके, तो अगर वो एक ही जगह पे बहुत टाइम के लिए रहते हैं तो फिर क्या होगा कि जो भी एडिबल प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको वो लोग खा लेंगे. तो फिर उसके बाद उनको जो फ्रूट्स चाहिए खाने के लिए या फिर लीव्स और व्हाटएवर, तो उसके लिए उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना ज़रूरी हो जाता है. ओके, और जैसे कि एनिमल्स की बात करें तो जो कि डियर है और अदर्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो वो लोग क्या करेंगे, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड सो they have to move from one place to another. And now let's see the last one. Here is a last reason. Okay, fourth one is for a reasonable water resources. Now what is reasonable water resources? As we know, there are so many rivers, lakes, ponds, right, and seas are there. But water of sea, we can't use it in our daily life. We can use only water of rivers. Okay. Now these early humans or hunter gatherers are lived on the bank of rivers, right. मतलब कि ये जो hunter gatherers थे वो क्या करते थे, yes, very good, वो लोग क्या करते थे कि जो रिवर बैंक्स थे वहाँ पे रहते थे ताकि उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता था. नाउ जैसे कि हमें पता है कि कुछ जो रिवर्स होती हैं वो सीजनेबल होती हैं, मतलब कि कुछ ही टाइम के लिए, मतलब कि जो मॉनसून का जो सीज़न होता है उसी दौरान, उसी टाइम पे उनमें पानी रहता है. दे वर फुल ऑफ वाटर एंड इन द लेन सीजन, मतलब कि जो दूसरी सीजन्स हैं जैसे कि यस समर, विंटर, उसमें ये जो रिवर्स हैं वो ड्राई रहती हैं, दे वर ड्राइड अप. ओके, और कुछ जो होती है उसमें पूरे साल पानी रहता है. तो जो हंटर गैदरर्स जो सीजनेबल जो रिवर्स हैं
उनकी बैंक पे रहते हैं तो उनको पानी के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, these are the four reasons for what hunter gatherers have to move from one place to another, right? Now let's see about that. इतना सब कुछ हमें पता चला तो ये हम पता कैसे लगा सकते हैं? ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट. How do we know about all these people? As we learn about our first chapter that the historians have so many sources by which they can found about the past, right? They can find about all these things that what the early humans can eat, they wear, right? And the archaeologists, they also known as the historians. Students, archaeologist वो जो है वो क्या करेंगे, जो अर्ली ह्यूमंस के टाइम के जो भी टूल्स जो हैं उनको वो लोग स्टडी करेंगे. नाउ अर्ली ह्यूमंस जो थे, मतलब कि ये जो हंटर गैदरर्स जो थे वो आज के टाइम के जैसे न्यूज़पेपर या ऐसा तो कुछ वो लोग यूज़ नहीं करते थे. ओके, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग मोस्टली जो स्टोन्स होते हैं उनका यूज़ करते थे, द नेचुरल स्टोन्स, बिकॉज इट इज़ अ हार्ड सरफेस, यस, एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड इजीली. यस, क्योंकि स्टोन्स जो हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं और वो इजीली ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, इसीलिए उसका लॉन्ग टाइम तक वो एक रिकॉर्ड रहता है. तो वो लोग क्या करते थे, यस, स्टोन्स में से कुछ टूल्स बनाते थे. जैसे कि हमारे पास घर पे टूल्स होते हैं ना, जैसे कि हमें वेजिस या फिर फ्रूट्स कट करने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, नाइफ. ओके, अगर हमें खाना बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यस, जो भी हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं वो. अगर हमें पानी पीना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लास. ओके, लाइक दैट जो ये गैदरर थे, हंटर गैदरर्स जो थे, तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, स्टोन्स. मतलब कि वो स्टोन का यूज़ करके ऐसे टूल्स बनाते थे जिससे कि वो जो मीट होता था, वेजेस होते थे, फ्रूट्स होते थे, उनको कट कर पाए. यस, जो एरोस वो बनाते थे, यस, तो हंट करने के लिए तो वो एरोस बना पाए. एंड so many things, so many tools, they were made from the stones. See, जैसे कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 13 पे आपको ऐसे कुछ टूल्स दिखाए हैं. एक शार्प स्टोन दिखाया गया है जिससे कि जो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो काट सकते थे और जो मीट और जो वेजिस फ्रूट्स जो थे
उनको कट करने के लिए वो लोग यूज़ करते थे। और भी था कि वो जो पेड़ की जो छिलके होते हैं जिसको हम बार्क बोलते हैं, तो वो जो बार्क होते थे उसमें से भी वो एकदम शार्प जो चीज़ें हैं वो बनाते थे। Now let's see about choosing a place to live. Choosing a place to live in. Now students, just tell me that हम कहीं पे जाते हैं, suppose for a picnic spot. अगर आपको कहीं पे पिकनिक में जाना है तो आप पहले क्या देखोगे? मतलब कि आप जिस प्लेस पे जा रहे हो, आप जिस जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड। आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वाटर, फूड, लैंड। ओके, सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको चाहिए। एग्जैक्टली लाइक दैट, जो हंटर गैदरर्स थे वो अपने रहने के लिए ऐसे प्लेसेस जो है वो चूज़ करते थे जहाँ पे उनको उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाए। नाउ स्टूडेंट, हियर इज़ अ मैप ऑन पेज नंबर 14. लुक इनटू इट. यस, वहाँ पे आप देखेंगे कि रेड कलर के ट्रायंगल में कुछ प्लेसेस आपको दिखाए गए हैं. यस, सो फाइंड इट आउट फास्ट. Which places are there? Yes, very good. It is Bhimbetka, then Hunski, then yes, Cornwall Caves. Okay, these are some places in which the hunter-gatherers choose to live, and many more are there. So first of all, as we know कि उनको रहने के लिए एक तो पानी की ज़रूरत होती थी. ओके, तो वो लोग ऐसे प्लेसेस चूज़ करेंगे जहाँ पे उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो. देन फूड, तो फूड के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे? एनिमल्स, दे हंट एनिमल्स एंड यस फ्रूट्स एंड लीव्स. तो वो ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे उनको ये उनका जो फूड है वो अवेलेबल हो. एंड जैसे कि हमें पता है कि उनको जो फूड है उनका, उसके लिए उनको क्या ज़रूरी था? टूल्स. और वो टूल्स किससे बनाते थे? स्टोन्स से. तो वो ये भी मतलब कि वो देखेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है. तो ये जो 3 कंडीशंस थे, दैट आर द मेनली 3 कंडीशंस दैट बेस्ड ऑन द ऑन वेयर दे लिव. मतलब कि हंटर गैदरर्स को जहाँ पे रहना है तो वो जगह चूज़ करने के लिए ये मेन 3 फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इसके आगे की जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैसे ऐसे टूल्स वो बनाते थे, कहाँ से स्टोन लाते थे, कैसे बनाते थे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, हियर वी लर्नड अबाउट hunter gatherers, how they do all these things, which are the reasons for they move from one place to another. Okay, how do we know about all these things, and choosing a place to live. So
here we completed our these 4 topics. Okay. Now, if you have any query regarding to this video, join Microsoft Teams meeting and like, share and subscribe the channel and put your valuable comments in the comment box. Okay. Thank you. Jai Shri Swaminarayan.